Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Today we are going to discuss one of the most interesting topic of geography, that is the continental drift theory. The idea of lateral movement of the continents was first mooted by the famous German geographer Professor Professor Alfred Wegener in 1915. Professor wrote a book called Die Ensung die Conte und Ozene. This book was written in German and was published in 1915. Later in 1924, the English translation of this book was published, which was named as The Origin of the Continents and Ocean. Friends, Professor Alfred proposed the continental drift theory, and according to this theory, the present day continent can be joined together in a jigsaw puzzle to form a landmass. फ्रेंड्स, अगर हम एक पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का, हाँ, उसमें जितने भी लैंड मास हैं, अगर उन लैंड मासेस को हम काट लें और उनको जोड़ें, तो वो जुड़ के एक पूरा एक आइलैंड सब एक पूरा लैंड ह्यूज लैंड मास बनाएंगे. सो दिस लैंड मास वाज नेम्ड एज पेंजिया. तो वैगनर वैगनर ने इनका नाम दिया. वैगनर ने इस लैंड मास को नाम दिया पेंजिया. अब ये पेंजिया जो था, ये वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहा था. ऐसे हम एक आइलैंड की तरह समझते हैं. एक आइलैंड चाहते हो पानी से घिरा होता है और उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है. उसी तरीके से जो पेंजिया था, वो भी इस वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहा था. तो उन्होंने इस वाटर बॉडी को नाम दिया द पेंथलासा. एंड दिस पेंथलासा सराउंडेड द पेंजिया. सो according to the continental drift theory, the present day continent can be joined together in a jigsaw puzzle to form a landmass. This landmass was named Pangaea, and the Pangaea came into existence 250 million years ago during Permian period. The Pangaea was just like an island which was floating on the water body. This water body was given the name of Panthalassa Sea or Panthalassa Ocean. Now, this island or this landmass broke down and started drifting towards north and the south. It happened about 200 million years ago during Triassic or post-Triassic age. फ्रेंड्स, हुआ क्या कि इस पूरे लैंड मास में किसी न किसी कारणों की वजह से ये टूटा और ड्रिफ्ट करने लगा. तो Alfred Wegener propounded or gave certain reasons which were responsible for the drift and disruptions. Wegener साहब ने कुछ कारण बताए कि ये डिसरप्शन क्यों हुआ और ये एक दूसरे से मूव करने क्यों लगे. The differential gravitational forces was the first reason. Second, the force of buoyancy. Third, the tidal forces of the sun and the moon. So these were the three reasons which were responsible for the drifting and disruption of the large landmass or huge landmass which was called as Pangaea, sailing on a ocean named Panthalassa Ocean. Friends, अभी दो लैंड मास थे. तो द लैंड मास विच वाज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड और लोरेंशिया. whereas the land mass that was shifting or drifting towards south, it was given the name the Gondwana land. So ये दो भाग टूटे. बाद टूटने के बाद एक दूसरे आगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे. उससे क्या हुआ, बीच में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ. इस वैकेंट स्पेस को ऑब्वियसली पानी नहीं भरा होगा, तो एक सी एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम रखा गया Tethys Sea. So friends, as these two land masses drifted apart, a space was created between them, and this space was filled by a shallow, narrow water body called as the Tethys Sea. We can also call it, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, it was the origin of the Tethys Sea, and Tethys Sea is considered to be the ancestor of the Mediterranean Sea. अब ट्रायसिक पीरियड बीता, उसके बाद जुरासिक पीरियड आया. उस पीरियड में क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड में डिस्ट्रप्शन शुरू हुए, तो वो भी टूटा.
तो जब फर्दर ब्रोक डाउन हुआ तो उससे क्या बने, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेडागास्कर. Friends, during the Jurassic period, disruptions occurred in Gondwana landmass and the present-day countries such as present-day continents such as Madagascar, not continent, sorry, South America, Africa, countries like Peninsular India, the island country Australia, and island Madagascar came into existence. इस समय क्या हुआ कि जो पेनिनसुलर इंडिया था वो नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा. सो जब वो मूव करता रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में भी कोई स्पेस क्रिएट हुआ. इस स्पेस के क्रिएट होने की वजह से इंडियन ओशन ओरिजिन में आया. फ्रेंड्स, द पेनिनसुलर इंडिया ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ and it led to the opening of the Indian Ocean. In the same time, the disruptions occurred in the Angara land and the countries or continents such as North America, Europe, Asia were formed. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट डे कंट्रीज हैं वो एक बड़े या कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बड़े लैंड मास से टूट करके छोटे छोटे उन्होंने कॉन्टिनेंट्स बनाए हैं. अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका निकले वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगे. तो जब वेस्ट की तरफ मूव करने लगे तो जिस भाग से वो टूट के निकले वहां पे एक स्पेस क्रिएट हुआ. उस स्पेस को पानी ने आके भरा. उस पानी की जो पानी ने आके स्पेस भरा उस पूरे तब एक नया ओशन का बर्थ हुआ. उस ओशन का हमने नाम रखा द अटलांटिक ओशन. सो the westward drift of North and South America led to the opening of Atlantic Ocean. The further westward movement of these two land masses led to the formation of two mountain ranges, that is Andes and Rockies. तो ये वो पोर्शन थे अंगारा लैंड के, जो वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे और उधर अफ्रीका भी बन रहा था. नाउ सेम टाइम पे क्या हुआ, जो गोंडवाना लैंड में हिमालयस थे वो हिमालयस बट पेनिनसुलर इंडिया वो नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा. जब वो नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा तो उसने हिमालय का ओरिजिन हुआ उसकी वजह से और एल्पाइन माउंटेन्स के बने. सो धीरे धीरे ये दोनों माउंटेन एग्जिस्टेंस में आए. Therefore, the Himalayas and the Alpines were formed due to northward movement of the peninsular India and Africa. अब जब बड़े पोर्शन टूट गए तो उसमें छोटे छोटे पोर्शन भी टूट के निकले. तो छोटे छोटे पोर्शन क्या थे, इट वाज अंटार्कटिका और जो रिमेनिंग पोर्शन था वाटर बॉडी का वो बना पैसिफिक ओशन. सो द मॉडर्न डे अंटार्कटिका एंड पैसिफिक ओशन आर द रेसिडुअल पार्ट्स ऑफ पेंजिया एंड द पेंथालासा ओशन रेस्पेक्टिवली. अब अपने इस थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट देने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिए. पहला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं जिस्सॉ फिजल का, कि हम अगर पूरे मैप को काटें और उस मैप को अगर हम जोड़े तो एक पूरा का पूरा बड़ा सा लैंड मास बन जाएगा जिसको हमने पेंजिया कहा. अब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज की बात करते हैं. जैसे कि इंडीज एंड जो हमारे अरावलीज माउंटेन्स हैं ये दोनों ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं. ये कैसे बने ये भी उन्होंने रीजन दिया. कुछ फॉसिल्स मिलते हैं जैसे कि ग्लॉसिप्टेरा फ्लोरा जो है वो हमें अफ्रीका में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है. ओके, माउंटेन रेंजेस अभी बताया जैसे मैंने एल्पाइन और हिमालय सेम फीचर्स हैं. कोल की जो सेम वैरायटी हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने में थोड़े थोड़े पैचेस में मिलती है. ग्लेशियर्स, ठीक है, इनके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव किया. सो ये एक पूरा एक ब्रीफ दे सकते हैं कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में एक थ्योरी दी. इस थ्योरी का नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो प्रेजेंट डे लैंड मास है उनको हम जोड़ करके एक लैंड मास बना सकते हैं. उस लैंड मास का नाम रखा उन्होंने पेंजिया. और जो ये पेंजिया था, ये जो पेंजिया एक वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, उस वाटर बॉडी का नाम रखा उन्होंने पेंथालासा ओशन. अब पेंथालासा ओशन देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि इसमें किसी किन्हीं कारणों की वजह से ये पार्ट दो भागों में टूटा
और ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करने लगा, नॉर्थवर्ड मूव करने लगा। सो हुआ क्या, रीजंस क्या थे, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, टाइडल फोर्सेस ऑफ मून एंड सन एंड द बुयांसी फोर्स। इसके बेसिस पर हमें बताया कि दोनों मूव करने लगे। लैंड मास नॉर्थ की तरफ मूव किया, साउथ की मूव किया, इनमें डिसरप्शंस हुए। डिसरप्शंस होने के बाद इसमें नए नए छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बने, जैसे कि अफ्रीका बना, अमेरिका बना और एशिया बना, यूरोप बना। धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंट्स बने तो ये आपस में टूटे। इनके आपस में टूटने की वजह से अटलांटिक ओशन जैसी बॉडीज, इंडियन ओशन जैसी बॉडीज एग्जिस्टेंस में आई। जब ये फर्दर मूव करते रहे तो हिमालयाज, एल्पाइंस, एंडीज और रॉकीज जैसे माउंटेन्स एग्जिस्टेंस में आए। ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज टॉपिक ये खत्म होता है। थैंक यू।